अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे कैबिन क्रू इंटरव्यू में पूछे गए कुछ रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपके साथ सैम्पल आंसर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ। इंटरव्यू वाले दिन जो आंसर्स होंगे वो आपके ही होंगे, बट ये जो सैम्पल आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस बेसिस पे या किस लाइंस या सिमिलर लाइंस पे आप भी अपने जवाब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू वाले दिन आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आजकल पूछा जा रहा है वो है फेवरेट मूवी और स्पोर्ट्स। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट विच एवर मूवी यू वॉच्ड रिसेंटली। इफ यू लाइक्ड द मूवी मेक श्योर दैट यू मेंशन व्हाट आर द गुड पार्ट्स ऑफ द मूवी। हमेशा जब भी आप आंसर दे किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू में मेक श्योर कि आप थोड़ा ज़्यादा बात करें। जस्ट डोंट गिव वन लाइन आंसर्स या 2 वर्ड्स के आंसर्स। मेक श्योर कि आप ज़्यादा बात करें because your answers should always be in an interactive form. Try to make sure कि the recruiter is going to ask you questions. You can make it a little funny. You can improvise on in any way you like to improvise. Just try to make your answers slightly longer. Describe the plots of the movie if they are talking to you about which was your favorite movie, if they're asking you which was your favorite movie, or if they're asking about whichever sports you like. Try to elaborate a little bit. Okay, the more you talk the better it will be for you because it will be an interactive session. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज योर लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जनरली ये उन लोगों से पूछा जाता है जो मतलब मल्टीपल टाइम्स किसी सेम जगह पे सेम एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जो रिक्रूटर है शायद उनको रिकग्नाइज कर लेता है या उनके डेटाबेस में वो पॉपअप हो जाता है कि इस पर्सन ने कुछ महीने पहले या कुछ डेज या वीक्स पहले इंटरव्यू दिया था। So you can always be very honest about your interview and say that I had a good interview that day. I learned so many things and I'm looking forward to today also, and I'm very confident that what did not happen last time will happen this time. आप ऐसे कुछ जवाब दे सकते हो। इसके बाद है tell us about your last birthday. How did you spend it? आपने अपने बर्थडे पे किया होगा, आप बता सकते हो। नेक्स्ट है which is your favorite season? So I think my favorite season is summer, which is here. The best thing that I like about summer is the sun actually, because whenever I see the sun shining very bright, I feel very up and active. I feel like going outside. I am an outgoing personality, so I like going outside. I like spending time outside. I like being out in the sun at the pool, swimming, or doing activities involving water. So I love every part of the summer, and the most important thing that I love is summertime means the mango season. I enjoy eating mangoes. I enjoy every bit of everything that you can make out of mango. So it's one of the best seasons for me. तो आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। Be honest about whatever you say. You can say what you like. The next question है what do you prefer, hard work or smart work? So if I had to answer this question, honestly speaking, both are important because agar you will start working smart only if you have done hard work in the past. So unless you have not worked hard, you will never gain the expertise to work smartly or to work efficiently or to use those tricks to work smartly. So I think initially for a beginner, working hard is more important than working smart. Kudos to you if you can crack it and start working smart at the beginning itself. But I think personally that working hard is more important. तो ये सबके जो आंसर्स है वो इंडिविजुअल आंसर्स हो सकते हैं, बट ये मैंने आपको स्पॉन्टेनियसली अपना जवाब दे दिया। तो आप सिमिलर लाइंस में आपको जो लगता है हार्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क कितना इंपॉर्टेंट है या क्या आपका प्रेफरेंस है, आप ज़रूर उनको ऑनेस्टली वो जवाब दीजिएगा। बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि शायद अगर मैं इंटरव्यू में होती और मेरे से ये पूछा जाता तो मैं ऐसा कुछ जवाब देती। क्वेश्चन है विच वन इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप कोई भी सिटी या कोई विलेज अगर आप गए हो, इंडिया के बाहर गए हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेक श्योर यू ट्राई टू एलैबोरेट योर आंसर। इसके बाद है स्पीक अ फ्यू लाइन्स इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो ये उन लोगों से पूछते हैं जनरली जो मतलब हिंदी उन लोगों से बोला जाता है कि स्पीक अ फ्यू लाइन्स इन हिंदी।
जो आर फ्रॉम दोज प्लेसेस, मे बी फ्रॉम द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर इतना हिंदी नहीं बात किया जाता है. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लॉट ऑफ हिंदी इज स्पोकन or it's widely spoken, but in some parts of India Hindi is not spoken as much as the regional languages. तो उन लोगों से ज़्यादातर पूछा जाता है. और इंग्लिश के लिए भी बाय द वे कुछ लोगों से पूछा जाता है कि कैन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन टू अस इन इंग्लिश. द ओनली रीजन बीइंग इज दैट मे बी दे वांट टू चेक योर लैंग्वेज स्किल्स. सो फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश जैसे आपको पता ही है इज इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं आपसे. उसके बाद है tell us one of your childhood memories. So you can pick up any of your childhood memories, what you think is an entertaining stuff. Keep it in your mind, prepare for yourself. अभी आप prepare करो, आपको याद जो आएगा. तो अगर आपने अभी प्रिपेयर किया है तो इंटरव्यू वाले दिन आपने ऑलरेडी अभी जो प्रिपेयर किया है उसमें से कुछ पॉइंट्स तो आप बोल ही पाओगे. आप नर्वस थोड़े हो जाते हो, थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है उस दिन. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बिन देयर ऑल्सो. मैंने भी बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. तो इसीलिए अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करोगे तो इंटरव्यू वाले दिन जो अगर आपने 10 पॉइंट्स अभी प्रिपेयर किए हैं तो आपको उस दिन जब आप बात कर रहे होगे एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो याद रहेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली उनको बोल पाओ. नेक्स्ट है व्हाई इज स्माइल इम्पॉर्टेंट फॉर दिस जॉब. So I think smiling is important because that gives you a very warm sense of feeling. So when you're looking at a person and that's the first contact that you're having with that person will feel less apprehensive of himself. That person will feel very welcomed. That person will feel comfortable. So one of the main goals for me as a cabin crew is to make sure that my passenger or my guest on board is comfortable. And if smiling can do that trick, then why not? And why should you not smile? It's a very good thing to smile. So the next question is, why is grooming important? I think grooming is important because, first of all, for yourself, it makes you feel more confident. And grooming, according to me, is not just about putting tons of makeup and doing your hair and stuff like that. Grooming is also how I present myself in front of people. So if I am well groomed, if I'm presenting myself well, I will feel more confident. People around me would like to talk to me. People around me would like to have a conversation with me. One is that. The second thing why grooming is important is that the reputation of the airline is going to be on me. I'm going to carry the reputation of the airline on me. I am going to be the frontliner of the airline. I am the face of the airline. So if I am well groomed, if I am well spoken, if I am well presented, it is going to show what kind of reputation my airline holds, the service standards that my airline offers. So everything lies on me. If I'm going to be well groomed, that's how the whole airline is going to be portrayed. That's why I think grooming is important. तो आप ऐसे सिमिलर लाइंस में अपने जवाब प्रिपेयर कर सकते हो. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. नेक्स्ट है योर फेवरेट डेस्टिनेशन. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप खुद ही जवाब दे दोगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम. सो माई नेम इज रचना. रचना इन हिंदी मीन्स क्रिएशन. So far, I do not know what I am good at creating, but I think I'm doing a good job by creating YouTube videos these days. So let's see how it goes ahead in future. So you can say whatever is the meaning of your name. अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में भी रिसर्च कीजिए कि आपके नाम का मतलब क्या है. Why do you want to join this airline? जब भी किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, मेक श्योर कि उसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च करके ज़रूर जाएं. यू शुड नो व्हाट इज़ देयर फ्लीट साइज, यानी हाउ मेनी एयरक्राफ्ट दे हैव, कितने लोगों को के टीम है उनका, कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कौन कौन से नए डेस्टिनेशंस शुरू हुए हैं, उनके यूनिक सेलिंग, उनका प्रोपोजिशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम पे अगर हम इंडिगो की बात करते थे तो it was known for its best on-time performance. Vistara is one of the premium airlines of India. तो ऐसे जो भी एयरलाइन के इंटरव्यूज़ में आप जा रहे हैं प्रिपेयर करिए उस एयरलाइन के बारे में जानने के लिए और उनका यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है. तो ऑलवेज डू दिस, चाहे आप एयरलाइन इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी और इंटरव्यू में जा रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ तो आपको
आई थिंक ये मैं ज़्यादा इलेबोरेट कर रही हूँ, बट अगर आप पैशनेट हो उस जॉब के लिए या पैशनेट हो उस एयरलाइन में जॉब करने के लिए, तो ये चीज़ तो आपने पहले से ही कर रखी होगी. तो यू हैव टू शो इट टू द रिक्रूटर्स दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस कंपनी. नेक्स्ट इज, कैन यू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट और नाइट शिफ्ट. जैसे कि आपको पता है कि एज अ कैबिन क्रू योर you don't have any shifts, you do not have any 2 days which are the same. अगर आज आपने सुबह की फ्लाइट ऑपरेट करी है तो ज़रूरी नहीं है कि कल आप सुबह की फ्लाइट ऑपरेट करोगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द रिक्रूटर्स टू नो कि यू आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, कि एवरी डे यू विल नॉट हैव द सेम टाइम का फ्लाइट और सेम टाइम का ड्यूटी. सो दैट्स वाई दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क. नेक्स्ट इज, वाई शुड वी हायर यू. तो जब भी आप ये क्वेश्चन कम अक्रॉस करें, जब भी आपसे ये पूछा जाए, हमेशा टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ योर स्ट्रेंथ्स कैन एड वैल्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन. So you can say that you have an outgoing personality, you like to travel, you like to meet people, you have a passion for service, you have good interpersonal skills, you like to talk to people, you are customer oriented person. So talk about skills which can add value to them and to their organization. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड, कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा. हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, एंड हो सकता है कि आपको भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके दूसरे लोगों के कमेंट्स देख के. अगर आप मुझसे कोई सवाल कैबिन क्रू इंटरव्यू या जॉब से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय.